Assalamu alaikum. Walaikum salam, sir. Walaikum salam. Waalaikumsalam. Okay, so welcome to the class of signals and systems. So all people can hear me clearly. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, that's good. Okay, so I'm your instructor, Shahid Bashir. Uh, I'm I may be your. This is the first course that I'm teaching you in this particular department. So most people may not know me very well, but I hope at the end of this course you will get to know about me. Uh, in my first lecture, uh, I usually uh, describe what are my expectations from you during this course. So I always encourage students to ask questions if they are not sure about any concept that I will teach you during this course. Because if I keep on lecturing you without getting your feedback, so I will not know whether I am able to deliver my lecture up to the expectation of the students in the class. So if you people keep silent during the class, so there are two possibilities: either you people, all of the students are getting all the concept clearly, or the second extreme view can be that students are not getting whatever I am teaching. So during the class, I will be asking some questions and I will be expecting students to answer those questions. So even if you have not, if even if you are not 100% sure what could be the answer to the question that I will pose, but if you have some idea, so I will encourage you to speak so that we have kind of an active class rather than kind of a passive class where only I am speaking and you people are listening. Okay. So I hope everyone is listening to my voice. Any problem? Yes, sir. Yes, sir. No Yes, sir. problem. Please. Okay, okay, that's good. Okay, so the course title is Signals and Systems. So before I formally define what is signal and what is system, you people, after going through the fifth semester, so there may be many courses where you may have used this terminology of signals. Okay, so if I ask you this question, can anyone define what is signal? So what will be your answer? Yes, anyone? Sir, basically, signal is a function of independent variable. Okay, let me write it down, whatever you are telling me. So you are telling me that signal is function of, let me call it some function of, yes, some function of, क्या कहा आपने, जरा दोबारा रिपीट करें. Independent variable, sir. Okay, some function of independent variable. Okay, so one of the student has come up with this definition of signal, that signal is some function of independent variable. Okay, we will discuss whether this definition
is acceptable or not. G, anyone else? Someone else try to explain the concept of signal. Wave that Sir, contain the useful information. Yes, the जी one by one जी बताएं क्या आप दोबारा रिपीट करें. Yes, Waves that contain the useful information. wave that contains useful information. Okay, G. Someone else was also trying to answer. G. sir, sequence of state that encodes a message. Sequence of code. States Sequence of of states that that encodes a message. that encodes a message. Okay. G. Anyone else? कोई और? जी जी. सर ये sir, encrypted packets of information. Encrypted packet Of information. of information. Okay. Sir, Yes. an action or gesture which convey information. Action or gesture that conveys Information. information. Okay. सर बेसिकली तो सिग्नल को हम कुछ भी कह सकते हैं, लाइक करंट पल्स, जिससे हम कोई इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं. वोल्टेज, करंट, पल्स भी एक सिग्नल ही है. पल्स भी एक सिग्नल है. ओके. करंट किसी या वोल्टेज के बेस पे किसी मतलब क्वांटिटी में जो चेंज हो जिसे हम ऑब्जर्व कर सके, मतलब ऑब्जर्वेबल चेंज हो. तो जैसे करंट हम वेरिएबल जो होता है, और वोल्टेज या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो मतलब वो इन अ सेंस हमें कोई इंफॉर्मेशन दे रहा हो, तो उसका कोई सेंस हो, तो मेरे हिसाब से सिग्नल कहलाता है. Okay. So most of the जो definitions जो आप लोगों ने बताई हैं, more or less they are correct, but they are not general definitions of signals, because you people are electrical engineers. So आपके जहन में सिग्नल की जो डेफिनेशन है उसमें आप लोग ज़्यादातर उसको वोल्टेज के साथ रिलेट कर रहे हैं, करंट के साथ रिलेट कर रहे हैं, पल्स के साथ रिलेट कर रहे हैं, और उस चीज़ को आप कह रहे हैं कि सिग्नल है. ठीक है. ऑफ कोर्स इन दिस कोर्स हम फिर सिग्नल को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि हम जो इस कोर्स में जिस चीज़ को सिग्नल कह रहे हैं वो क्या चीज़ है. लेकिन बिफोर restricting ourselves to the definition or the signal type that we will deal in this course, we need to generalize the signal definition, because ये जो signal का concept है ये सिर्फ और सिर्फ electrical engineering में हम use नहीं करते. It is being used in different fields, even in civil engineering, even in mechanical engineering, even in non-engineering fields में भी हम एक signal का concept use कर रहे होते हैं. So based on that, we should be in a position to define signal in a broader sense, in a general sense. Okay. So हम अगर इसको generalize definition करेंगे तो हम signal को, एक तो someone has used this idea कि हम एक signal को कहेंगे कि ये एक function है. ठीक है. So जब भी हम signal को define करेंगे, that of course in this particular course हमारा एक objective ये है कि हमने सिग्नल को फुली कैरेक्टराइज करना है. ठीक है. कि हम जब सिग्नल को सिग्नल की जब हम बात कर रहे होते हैं तो दो चीजें हमारे पास इंपॉर्टेंट है. एक तो हमें सिग्नल को डिस्क्राइब करना है मैथमेटिकली. सो लेट मी राइट इट डाउन. So the goal of this particular course is that you people should be comfortable in describing signal mathematical. So हम एक तो mathematical representation को देखेंगे कि जब हम सिग्नल को अपने इक्वेशंस में यूज करेंगे तो हम उसको मैथमेटिकली हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. ठीक है. तो एक गोल तो हमारा ये होगा. ठीक है. सो वन इज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा हमने इसको विजुलाइज भी करना है. ठीक है. तो एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ
हमने विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी करनी। So if any signal is defined mathematically and if someone asks you कि इस सिग्नल को जरा आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें कि ये किस किस्म का सिग्नल होगा, विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, सो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ आपको उसको विजुअली भी रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी विल डू थ्रू आउट दिस कोर्स कि हमने किसी भी सिग्नल को मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट करना है और उसको विजुअल भी रिप्रेजेंटेशन देनी है। ठीक है, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि हम सिग्नल को सम वन स्टूडेंट इज टेलिंग मी कि आवाज नहीं आ रही जी। तो बाकी जो स्टूडेंट है जी कंफर्म करें मेरी आवाज आ रही है आप सब लोगों को? यस सर, आपकी आवाज सही आ रही है? यस सर। ओके, सो इट मींस जो स्टूडेंट हैं आपका नाम है जी, मेक श्योर कि जब आप इस क्लास लिंक को ज्वाइन करें तो अपना ज़रा नाम जो है एक्चुअल नाम ज़रा उसको रीनेम कर दिया करें ताकि मुझे फिर आसानी हो कि सो आई थिंक मुदस्सिर कोई हैं जो कह रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि बाकी लोगों को आ रही है, इसका मतलब है कि प्रॉब्लम आपके एंड के ऊपर है। ठीक है, ओके, सो सिग्नल को हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। फंक्शन that describe some process so let me restrict this definition या इसको मैं यहाँ पे so signal in a more general form कह सकते हैं कि एक किस्म का एक फंक्शन है जो कि किसी प्रोसेस को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, अब जो आप लोगों ने डेफिनेशन की उसमें जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें कि अगर हमारे पास एक लेट्स से वी हैव अ सर्किट, सिंपल आरसी सर्किट है हमारे पास और इसको हमने एक वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है। This is source voltage, this is resistor, this is capacitor, and there will be current flowing through this circuit as well as let's say कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी जिसको हम VC कह देते हैं, इसी तरह रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है VR। ठीक है, ओके, इफ अगर हम वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर को या वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर को या करंट थ्रू दिस सर्किट को अगर हम देखेंगे तो इन तीनों को हम कह सकते हैं कि ये एक किस्म का सिग्नल है। ये VR जो है एक किस्म का वोल्टेज सिग्नल है, VC जो है ये भी एक सिग्नल है जो कि डिस्क्राइब कर रहा है कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज का बिहेवियर क्या है। I करंट को भी हम कह सकते हैं कि ये भी एक सिग्नल है क्योंकि ये हमें बता रहा है कि इस सर्किट में करंट का जो बिहेवियर है वो क्या है, तो ये करंट को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, अभी हमारे पास मोर इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट है सिग्नल का, लेकिन अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं कि अगर आप स्टॉक एक्सचेंज को अगर आप देखें, स्टॉक एक्सचेंज को अगर आप उसके देखें कि ओपन होती है स्टॉक मार्केट और फिर क्लोज होती है, तो एट द एंड ऑफ द डे वी से के आज जो स्टॉक जो क्लोजिंग थी इस आज के मंडे के दिन इतनी थी, ट्यूसडे के दिन इतनी थी। तो ये जो आपके पास डेटा आपके पास आ गया है कि स्टॉक मार्केट का थ्रू आउट द वीक उसका क्या बिहेवियर था, तो ये भी एक किस्म का सिग्नल हो गया। ठीक हो गया। इसी तरीके से इफ आई measure the temperature, अगर मैं टेम्परेचर मेजर करूं हर दिन
तो ये जो टेम्परेचर मैंने मेजर किया है ये भी एक किस्म का एक सिग्नल है। इसी तरीके से एक और इम्पोर्टेंट जो आप कह सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शन है हमारे जहनों में कि हम नॉर्मली अज्यूम करते हैं कि सिग्नल का जो ताल्लुक है वो टाइम के साथ है। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने एक जनरलाइज डेफिनेशन किसी ने की थी जिसमें आपने कहा था कि ये सिग्नल जो है किसी भी वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है और वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हमने कहा। नॉर्मली एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हमारे जहन में ये होता है कि जो हमारा सिग्नल है वो फंक्शन ऑफ टाइम होगा। तो हम नॉर्मली इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है कि हम टाइम की बात कर रहे हैं इन अदर सेंस कि ये अगर हम एक ग्राफ में प्लॉट करूं कि अलोंग एक्स एक्सिस मेरे पास टाइम हो और अलोंग वाई एक्सिस में आई को प्लॉट करूं या वी को प्लॉट करूं, तो ये जो मेरे पास ग्राफ जिस किस्म का भी आएगा तो यू कैन सी कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो करंट सिग्नल है या वोल्टेज सिग्नल है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, बट इन अ जनरल सेंस सिग्नल कैन बी फंक्शन ऑफ एनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो एज एन एग्जांपल जो मैं आपको बता रहा था कि अगर आप टेम्परेचर को मेजर करें एट डिफरेंट हाइट्स, आप किसी जगह पे चले जाएं और फिर डिफरेंट हाइट्स के ऊपर आप टेम्परेचर को मेजर करें, लेट्स से एट बिल्कुल ग्राउंड लेवल के ऊपर आप टेम्परेचर मेजर करें, फिर आप 10 सेंटीमीटर पे मेजर करें, फिर आप 20 सेंटीमीटर, तो डिफरेंट हाइट्स पे अगर आप टेम्परेचर मेजर करें तो ये जो आपके पास डिफरेंट वैल्यूज आ गई हैं, ये अब क्या के इसको भी आप क्या कह सकते हैं कि ये भी एक सिग्नल है। लेकिन ये सिग्नल जो है अब ये फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है बल्कि ये फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर की वेरिएशन को हम देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू हाइट, विद रिस्पेक्ट टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड। सो नॉर्मली ये जो हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में अलोंग एक्स एक्सिस टी को प्लॉट करते हैं, बट इन अ मोर जनरल सेंस ये जो टी है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये कुछ भी हो सकता है। इट्स नॉट नेसेसरीली कि हम टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हमने बात की ये कुछ भी हो सकता है। ये आपके पास हाइट भी हो सकती है, ठीक है, ये आपके पास डे भी हो सकता है। जिस तरह मैंने कहा कि आप हर दिन अगर टेम्परेचर मेजर करें मंडे ट्यूसडे, सो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल डे हो जाएगा। सो इन अदर वर्ड्स जब हम सिग्नल की बात कर रहे हो तो वी नीड टू बी अवेयर ऑफ के सिग्नल इज समथिंग विच इज हैविंग यूनिवर्सल प्रिवेलेंस। इन डिफरेंट फील्ड्स में हम सिग्नल का कंसेप्ट यूज करते हैं to describe the physical process। जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे process के साथ अगर आप physical process कहते हो it will be more generalized definition। okay, now just to ये तो मैं सिर्फ आपसे थोड़ा सा चेक करना चाह रहा था कि सिग्नल के बारे में आपके लोगों के जहनों में क्या है। सिमिलरली अगर मैं बिफोर आई फॉर्मली स्टार्ट टुडेज लेक्चर, हमने इस कोर्स में सिस्टम को भी देखना है। ठीक है, सो इफ आई आस्क यू क्वेश्चन कि आपके जहन में सिस्टम आप किस चीज को कहते हैं जी? एनीवन? Group of जी, group of entities working together to perform a task. ग्रुप ऑफ एंटिटीज Working together to perform a specific task. working together to perform a task. Specific task. Specific task. Okay. Okay, so ये तो एक स्टूडेंट ने बता दिया जी। बाकी someone else try to answer this कि किस सिस्टम को हम किस तरह डिस्क्राइब डिफाइन कर सकते हैं जी? जी, ये डेफिनेशन किसने बताई है जी? क्या नाम है आपका? Usama Faiz. उसामा फैज। ओके जी, उसामा फैज के अलावा जी कोई बताएगा जी सिस्टम किसको कहते हैं? मेरे ख्याल से मतलब जब मुख्तलिफ चीजें Procedure to solve a problem. प्रोसीजर, दोबारा बताएं। Procedure to solve a problem.
Procedure to solve a problem. Sir, जी. system Things is working together in a things working together in a network. वो तकरीबन जो ये पहली डेफिनेशन Yes, में sir. लिखी हुई है वो System, उसमें sir, कवर हो रही है जी. System is the collection of elements or compounds that are organized for a common purpose. एंटिटीज आप कह रहे हैं, आप दोबारा कहें. A system is the collection of elements or compounds that are organized for a common purpose. कॉमन पर्पस. ओके. सो अगेन इसको भी मैं जो पहली डेफिनेशन है ये तकरीबन इससे मिलती जुलती डेफिनेशन ही आप बता रहे हैं. ठीक है. उसमें भी वो स्पेसिफिक टास्क मीन के कॉमन आप टास्क की बात कर रहे हैं और एंटिटीज की जगह आप वो उसको दूसरा सिंपल और कंपाउंड का वर्ड यूज कर रहे हैं. तो ये मोर और लेस आपकी जो डेफिनेशन है वो पहली वाली डेफिनेशन के अंदर ही आ जाती है. जी जी. कोई और ट्राई करेगा जी. Sir, Set of system, procedures जी. according to which something is done. मैं थोड़ा सा मिस कर दिया, दोबारा रिपीट करें. Set of procedures according to which something is done. Set of procedure. आगे. According to which Okay. According to which. something is done. According to which something is done. Okay. Sir, an organized environment which is used to solve specific problems. Okay. Again, इसको भी मैं तकरीबन most of the students जो मुझे आप लोग बता रहे हैं वो इस definition के अंदर ही fit हो रही है. Sir, system is actually a signal which give a response, sir. System is actually a signal that आपका मतलब है कि Give you a response, sir. सिस्टम और सिग्नल एक ही चीज है. आपकी जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिग्नल और सिस्टम एक ही चीज है और नहीं कि आप कुछ और मतलब है इसका आपके जहन में. सर जो हमें रिस्पांस देता है सर वो उसका हम सिस्टम कहेंगे. रिस्पॉन्स देता है तो फिर को थोड़ा सा आप फॉर्मलाइज करें ना जो आप कहना चाह रहे हैं. आप कह रहे हैं कि सिस्टम इज अ सिग्नल. मेरे ख्याल में आपने यही कहा ना कि सिस्टम इज अ सिग्नल. सर एक्चुअली पार्टिकुलरली सिग्नल व्हिच गिव अ रिस्पांस, सर. तो इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि सिस्टम जो है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिग्नल है. यस सर. ओके. जी. कोई और ट्राई करेगा कि मैं इसको क्लियर करूं कि क्या प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो सकती है सिस्टम की. सर क्लियर कर ले. ओके. क्लियर कर ले. ओके. सो अगर हम सिस्टम को फॉर्मली डिफाइन करें we can say a system is something that takes some input signal and then give us some output signal. और दूसरी डेफिनेशन ये हो सकती है कि system is something that transform an input signal to an output signal. And we will talk about this. अगर मैं एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दूं कि अगर मैं ये एक बॉक्स बनाऊं और मैं कहूं कि ये मेरे एक सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, नो मैटर कि इस सिस्टम का एक्चुअल पर्पस क्या है, इसने क्या करना है, वो हम बाद में देखेंगे. अगर मैं इसको जनरलाइज डेफिनेशन कहूँ तो मैं कहूँगा कि सिस्टम क्या है कि इसको हम इसके इनपुट पे हम कुछ सिग्नल अप्लाई करेंगे तो इसके लेफ्ट साइड पे कोई सिग्नल होगा. ये सिस्टम जो है इस इनपुट सिग्नल के ऊपर ऑपरेट करेगा और हमें
एक डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल इसके आउटपुट के ऊपर मिलेगा जिसको हम कहेंगे कि ये आउटपुट सिग्नल है। नाउ इट ऑल डिपेंड्स कि हमने ये जो सिस्टम डिजाइनर है उसका क्या पर्पस है, वो इस इनपुट सिग्नल से क्या बनाना चाहता है। सो अकॉर्डिंगली इस सिस्टम का जो आउटपुट है वो हमें डिजायर्ड आउटपुट मिल रहा होगा। एज अ सिस्टम डिजाइनर ये जो हमारा आउटपुट सिग्नल है इसको आप कह सकते हैं कि ये हम चाहते हैं कि हमें मिले, तो ये हमारा डिजायर्ड सिग्नल होगा। तो ऑफ कोर्स अगर हम इस इनपुट सिग्नल को इस आउटपुट सिग्नल की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, इसका मतलब है कि हमें इस सिस्टम को प्रॉपर्ली डिजाइन करना पड़ेगा। बट इन अ जनरल सेंस जितने भी आप सिस्टम देखेंगे, हर सिस्टम का मकसद यही होगा कि वो कोई सिग्नल ले रहा होगा एज ए इनपुट और हमें आउटपुट पे एक और सिग्नल मिल रहा होगा जो हम डिजायर चाहते, जो हमारा मकसद है कि इससे हमें ये सिग्नल मिले। ठीक है। सो एज अ सिंपल एग्जांपल अगर मैं कहूँ, समटाइम्स वी वांट कि मेरा सिग्नल, लेट्स से टू बी मोर स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से, अगर आप कहें कि आपके पास एक सिस्टम है जिसको मैं कहूँ कि ये रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर है जिसको आपने डिजाइन किया है। अब इस रेक्टिफायर को मैं कह रहा हूँ कि ये सिस्टम है, और मैं किस बेस पे कह रहा हूँ कि इस सिस्टम का फंक्शन क्या है कि इसके इनपुट पे मैं इसको एक सिग्नल दूंगा जिसको आप कहेंगे कि एसी सिग्नल है, और फिर इस सिस्टम का काम क्या होगा कि ये इस एसी सिग्नल को ट्रांसफॉर्म कर देगा इनटू डीसी सिग्नल। सो इस सिस्टम ने क्या किया, रेक्टिफायर ने क्या किया, इस सिग्नल को ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू ओवर डिजायर्ड सिग्नल। और एज अ डिजाइनर ऑफ रेक्टिफायर मेरा मकसद यही है कि मैं अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करूं। अब ये तो मैंने सिर्फ एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको डेफिनेशन दी है, लेकिन अगर हम किसी भी जगह आपको अगर ये नजर आ रहा हो कि एक आपने एक सिस्टम, अगेन एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि यू शुड नॉट ऑलवेज थिंक कि सिस्टम जो है एक हमेशा कोई फिजिकल सिस्टम होगा। अगर आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, सॉफ्टवेयर विच इज नॉट अ फिजिकल थिंग, और उस सॉफ्टवेयर को आप इनपुट डेटा देते हैं और आपका जो प्रोग्राम है, जो आपका एल्गोरिथम है, वो उस इनपुट सिग्नल या इनपुट इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, तो आपका जो प्रोग्राम है, जो आपका कोड है, वो भी एक किस्म का सिस्टम हो गया कि उसने एक इनपुट सिग्नल को लिया, जो भी आपने इसको डेटा देना था, और उसको कोई एल्गोरिथम उस पर अपने अप्लाई किया, और आपको आउटपुट पे, प्रोग्राम के आउटपुट पे कोई और इन्फॉर्मेशन मिल गई। इसका मतलब है कि आपका जो प्रोग्राम आपने लिखा हुआ है, सॉफ्टवेयर जो कि नॉट अ फिजिकल थिंग, वो भी एक किस्म का सिस्टम हो गया। So this is a broader definition of signal and system. But of course इस कोर्स में जब हम सिग्नल और सिस्टम की बात कर रहे होंगे तो हमें थोड़ा सा अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से उसको देखना पड़ेगा, बिकॉज एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जब आप फील्ड में जाएंगे तो आपका जो वास्ता पड़ेगा वो उन सिग्नल और सिस्टम से पड़ेगा जो हम इस कोर्स में कवर करेंगे। ओके, नाउ दिस इज जस्ट, मैंने थोड़ा सा, क्योंकि टाइटल आपका कोर्स का नाम है सिग्नल एंड सिस्टम, तो मैंने थोड़ा सा वो देखना चाह रहा था कि आप लोग के जहन में सिग्नल और सिस्टम के बारे में क्या है। ठीक है, बट ड्यूरिंग दिस कोर्स हम इसको और भी क्लैरिफाई करेंगे कि सिग्नल जो मैंने बात की है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन को कैसे हम कहेंगे, और इसी तरीके से जब हम सिस्टम को डिस्क्राइब कर रहे होंगे तो हम सिस्टम को कैसे डिस्क्राइब करेंगे इन अ लैंग्वेज जिसको हम सिस्टम एंड सिग्नल लैंग्वेज कहेंगे। ठीक है, तो हमारा मकसद ये है। जी जी, जी कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं आप लोग? अगर क्वेश्चन नहीं है तो काइंडली थोड़ा सा अपना माइक जो है वो आप म्यूट रखा करें। अनलेस अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो प्लीज मेक श्योर कि आपका माइक जो है वो म्यूट।
Any question so far? नो सर। अच्छा, so एक और इम्पोर्टेंट जो मैं आपसे बात करना चाह रहा था इस बारे में कि what is the purpose of this course, कि हमने at the end of this course हमने एक लैंग्वेज डेवलप करनी है जिसको मैं सिग्नल एंड सिस्टम लैंग्वेज कह रहा हूँ, ठीक है, जो कि एक स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी होगी जो हम डेवलप करेंगे कि जब भी हम सिग्नल और सिस्टम की एनालिसिस करेंगे, सिग्नल एंड सिस्टम डिज़ाइन की बात करेंगे, तो हम एक ऐसी लैंग्वेज डेवलप करेंगे जो हमें सिस्टम को अंडरस्टैंड करने में, सिस्टम को डिज़ाइन करने में हमारे पास यूजफुल हो जाएगी। और जहाँ पे भी आप सिग्नल और सिस्टम की बात कर रहे होंगे, सो यू विल बी श्योर कि आप एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज कर, ठीक हो गया। आप लोग पहले जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे 5th सेमेस्टर में, तो क्या आप लोग यही जूम टूल यूज कर रहे थे या कोई और टूल यूज करते थे? जी, जूम यस सर। सर, हाइब्रिड था, मतलब जूम भी था और गूगल मीट भी। ओके, सो एक इशू है जूम, क्योंकि मैं यूज करता हूँ, पहले भी मैं यूज कर रहा था, तो इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये 40 मिनट्स की इसमें लिमिट है। 40 मिनट्स के बाद ये जो मीटिंग है ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। तो जब भी ये मीटिंग 40 मिनट्स तो अप्रोच करेगी तो फिर हम दोबारा से मुझे मीटिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। सो मेक श्योर कि अगर जब ये मीटिंग खत्म हो जाएगी तो फिर दोबारा से आप उसी लिंक के थ्रू इसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। वी स्टिल है 5 मिनट्स, लेकिन मैं पहले से आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। यस सर। ओके सर एक सर ने इसकी अपडेटिंग की थी, उसका फिर चल रहा था सर, नहीं कट रहा था। जी, दोबारा बताएं। सर एक सर ने इसकी कुछ चीजें अपडेट की थी तो उसका कट नहीं हो रहा था, वो 3-4 घंटे हो जा रहा। आई एम नॉट श्योर, वो तो फ्री वर्जन में तो पॉसिबल नहीं है, वो तो आपको फिर उसको सब्सक्राइब करना पड़ता है, विच आई एम नॉट श्योर कि वो तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। मेरा नहीं ख्याल कि फैकल्टी मेंबर ने ऐसा किया होगा। गुलजार वो सर ने पेड किया। वर्जन है सर। पेड वर्जन है तो वो थ्रू आउट उन्होंने यूज सर किया ये था। यस सर, हो यस सकता सर, है, ये भी लेकिन सर ठीक है। उसको हम पे करना इस तरह पड़ेगा। करते थे और कोर्सेज में 40 मिनट बाद हम दोबारा रिज्वाइन करते थे। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो फ्री वर्जन में ये प्रॉब्लम है, मेरा नहीं पता है कि वो किस बेस पे आप कह रहे हैं कि वो खत्म नहीं होती थी। वो उसी वक्त ही हो सकता है कि अगर आपने इसको पेमेंट की हो, सब्सक्राइब किया हो, तो वो मेरा ख्याल में मैं सर पूछ गुलजार लूंगा। सर कर रहा था, सर गुलजार गुलजार सर कर रहा था, बाकी नहीं पता। यस सर। ओके, मैं गुलजार साहब से पूछ लूंगा कि वो वो किस नहीं कर तरह। रहा था, काशिफ उसने नहीं किया था। अच्छा, तो मैं सर यही उसने कह नहीं किया था, ओके ओके, मे मुझे बी जिस इसमें तक जितना जब याद है। ये शुरू में ये जूम जो ऐप थी, ऑफ कोर्स ये तो कोविड की वजह से इसका यूज बहुत ज्यादा हो गया है। तो शुरू में जब ये अपने कस्टमर्स बढ़ाने के लिए, इवन जो फ्री वर्जन में भी जो था, इसका जो टाइम लिमिट था वो अनलिमिटेड था। तो शुरू में जो मुझे भी याद है कि जब मैंने इस फर्स्ट टाइम जूम को स्टार्ट किया था तो उस वक्त ये प्रॉब्लम नहीं था। तो लेकिन फिर जितने कस्टमर ज़्यादा हो गए तो फिर हमने ये फ्री वर्जन में ये ऑप्शन ख़त्म कर दिया। तो फ्री वर्जन में 40 मिनट्स के बाद ये मीटिंग ख़त्म हो जाती है, ठीक है। सो अगेन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, 40 मिनट्स के बाद आप लोग दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जस्ट टू मेक श्योर कि मैं आपको थोड़ा पहले से बताना चाह रहा था कि ये मीटिंग ख़त्म हो सकती है, ठीक है। नाउ जस्ट टू पहले थोड़ा सा मैं ओवरव्यू कर लेता हूँ इस कोर्स का, कि इस कोर्स में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है, सो दैट यू गेट अ बिग पिक्चर कि इस कोर्स में हम कौन कौन सी चीज़ें कवर करेंगे और एट द एंड ऑफ दिस कोर्स कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को क्लियर करनी है। सो दैट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो सिग्नल एंड सिस्टम का जो कोर्स है, ये आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करिकुलम में एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कोर्स है, जो स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है कंसेप्ट वाइज। और ऑफ कोर्स एज अ टीचर मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि आप लोगों की मैंने मेमोरी चेक नहीं करना कि आप लोग कितना ज़्यादा मटेरियल जो है अपने जहन में याद कर सकते हैं, ठीक है, जिसको आप रॉट लर्निंग कहते हैं। मेरा मकसद ये होता है किसी भी कोर्स में कि स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग उन्होंने कितनी डेवलप की है, ठीक है, कंसेप्ट उन्होंने कितने क्लियर किए हैं, ठीक है।
सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि आप लोग कितना जल्दी कोई चीज़ याद कर सकते हैं। मैं इंटरेस्टेड इस चीज़ में हूँ कि आप कितना क्लियरली किसी टॉपिक, किसी कंसेप्ट को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं और फिर उसको दूसरे लोगों तक भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो जब आप कंसेप्ट आपको खुद क्लियर नहीं होगा तो फिर आप किसी और को भी आप कॉन्फिडेंटली नहीं बता सकते। ठीक है, अगर आपने याद किया होगा तो फिर रटा रटाया अगर आप किसी को बताएंगे और अगर दरमियान में वो आपसे कुछ भी पूछ ले एज अ काउंटर चेक, तो फिर आप जो है यू विल बी स्ट्रगलिंग। ठीक है, सो मेक श्योर कि इस कोर्स में हमारा फोकस होगा कि हमने कंसेप्ट डेवलप करने हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। ठीक है, सो पहले तो हम इस कोर्स में जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, हमने बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्नल्स को कवर करना है। सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, जब हम सिग्नल को कैरेक्टराइज करते हैं तो हम सिग्नल की कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में इंटरेस्टेड होते हैं, या अब हम जब सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं तो सिस्टम की बेसिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। ठीक है, देन टाइप्स ऑफ signals and systems. There are wide variety of signals and systems that you people will encounter in this course. So we will try to understand कि signals को different types में हम कैसे